Good afternoon, everyone. Welcome to the session today. And as you know, we are going to discuss a tool on social maturity today. And this tool for today is VSMS, which stands for Vineland Social Maturity Scale. Let me brief you about it. So this is the scale. These are the briefings. I'll show you the scale later. This scale was originally made by Edgar A. Doll in 1935, and after that it saw many improvements. Many revisions were launched and there were a number of improvements done after that. The categories that were included here in the scale are self-help, self-direction, locomotion, occupation, communication and social relation. And this scale applies from 0 years to 25 years of people, and this is in a progressive manner of maturation in number of years. So there are age-wise categories. Now let me tell you a little about the one done on Indian children. So the one I am introducing you is by Bharat Raj. भारत राज के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस टूल को इंडियन पॉपुलेशन पे अडेप्ट किया है, यहाँ का सैंपल लेकर उस पर बनाया है, लेकिन भारत राज का काफ़ी कॉमन है. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू दिस वन. आइटम्स आर मोर और लेस आइडेंटिकल, बहुत सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाते हैं जिस पॉपुलेशन पे हम उसको अडेप्ट करते हैं. तो एज वी आर इन इंडिया, सो इट्स गुड टू टेक एन इंडियन टूल. Now see how this division is done. First of all, the age. Adaptation was done from 0 to 15 years. Dolls ने 25 and above किया था, इन्होंने 15 and above तक के लिए स्टैंडर्डाइज किया है. और इसमें कैटेगरीज हैं सेल्फ हेल्प जनरल, सेल्फ हेल्प ईटिंग, सेल्फ हेल्प डायरेक्शन, सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, ऑक्यूपेशन, communication, locomotion and socialization. So now let me show you the questionnaire of this tool. Here we are, and as you can see there are few items, cries, laugh and all these things written here. This is in the growing manner of maturation. You can also call these developmental milestones, minor ones. And these are categorized according to age, like 0 to 1. 0 means when the child is born, and then till 1 year, then 1 year and onwards, 2, and then similarly it goes on and on, 2 to 3, 3 to 4, like this. And we have different items in these categories, what all the child can do or the person can do. Until here it's 15 years. 15 years, 12 to 15 years is taken into one category. I'll give you the reason why items reduce with age, because maximum learning and maximum changes in the person occurs in a very young age. Around 85% of the development takes place बिफोर 5 years of age. तो वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे किसी भी टूल में कि वो ऐसा करता है, ऐसा करता है. जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आइटम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि चेंजेस थोड़ा देर में नज़र आते हैं या बहुत वेग तरीके से नज़र आते हैं, या कुछ डोमेन्स में दिखते हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं दिखते हैं. जैसे चलना, दौड़ना, ये सब हो चुका होता है, ये बाद में नहीं आएगा. So this is the reason why items are less in the higher age groups, और जो items बहुत ज़्यादा होंगे वो बिल्कुल younger age group में ज़्यादा होंगे. So this is about the tool. So now I will tell you about the administration of this test. This is basically done with parents, और कुछ performance part देखना होता है. तो जैसे इसमें items हैं, if the child can balance head, अगर वो बहुत छोटा है तो आप उसको देख भी पा रहे हैं और पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. अगर वो बड़ा हो गया है और आपको पहले की बात पूछनी है तो आप डेफिनेटली पेरेंट्स से पूछेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर उसने अपना हेड नेक कंट्रोल शुरू कर दिया था कि नहीं, या सिर संभालना शुरू कर दिया था कि नहीं. इसी तरह से ग्रास्प विथ थंब एंड फिंगर, इस तरह से पिंसर ग्रास्प.
तो ये वाली चीज़ आ गई है कि नहीं आ गई है. सो ऑल दीज आइटम्स आर एज अप्रोप्रिएटली डन. दीज आर द डेवलपमेंटल थिंग्स टू बी एज अप्रोप्रिएटली नॉर्मल इन दिस रेंज. जिस एज में जो होना चाहिए वो लिखा है. अगर वो नहीं हो रहा है देन वी विल बी एबल टू सी द डिलेज. यहाँ पर आप पेरेंट्स से तो पूछते ही हैं और कुछ चीज़ें आप साथ साथ में ऑब्जर्व करते हैं. कभी कभी पेरेंट्स उतना क्लियरली नहीं बता पा रहे होते हैं, बट यू नीड टू हैव गुड स्किल्स इन इंटरव्यूइंग. आपको बहुत अच्छे से प्रोब करना है विदाउट थ्रेटनिंग कि उनको लगे कि पता नहीं मेरा कुछ एग्ज़ाम हो रहा है. आपको बहुत कैजुअली आराम से उनसे बात करते हुए पूछना है और क्रॉस चेक भी साथ में करना है कि बच्चा उस तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि बच्चा आपके सामने वो चीज़ आपको करके दिखा दे, बट यू शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई. तो आप कुछ आइटम्स रख सकते हैं वहाँ पर जिसमें आप उसको कुछ एक्टिविटीज़ करने को दे सकते हैं और उन एक्टिविटीज़ के बेस पर आप देख सकते हैं. तो जो भी इसके अंदर आइटम्स हैं यू कैन क्रिएट थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट. आप उसमें देखेंगे कि मान लीजिए मार्क्स विद पेंसिल और क्रेयॉन. 1 to 2 ईयर्स के बीच में बच्चे को ये कर लेना चाहिए. अब वो पेंसिल और क्रेयॉन से मार्क कर रहा है कि नहीं, अगर पेरेंट बता पा रहे हैं फाइन. अगर आपको लगता है थोड़ा डाउट है और अगर आपको लगता है नहीं मुझे वैसे भी क्रॉस चेक करना है, परफॉर्मेंस देखना है, तो आप उसे एक पेंसिल और क्रेयॉन वाली एक्टिविटी दे भी सकते हैं. यू कैन सी इफ द चाइल्ड कैन डू दैट. अब हम इसको स्कोर कैसे करेंगे? सो लाइक दिस यू टेक ऑल द आंसर्स. लेकिन अभी तो आप सिर्फ आंसर्स ले रहे हैं, बट यू हैव टू मार्क समथिंग फॉर दैट, क्योंकि आप सिर्फ सुनकर उतना सारा याद नहीं रख सकते. यू ऑलवेज हैव टू स्कोर. So here I will show you that I have made for you to make it easy, क्योंकि आप मैनुअल में पढ़ेंगे तो you will get confused. So it is something like this. First you see this, then I will explain. Okay. So if the child performs well, आपने देखा वो कर रहा है, you will make a plus sign against that item. Plus sign का मतलब है 1 score. अगर आपको लगता है नॉट प्रेजेंटली बट फॉर्मली परफॉर्म, पहले करता था पेरेंट्स ने बताया लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो यू विल से +F एंड दैट विल स्कोर ऑल्सो 1. कभी कभी चीज़ें फेड आउट होती हैं या बच्चा उस वक्त नहीं करता होता है. फिर एक और चीज़ है +NO भी आप मार्क देंगे. कब? कैन जब आएगा कैन परफॉर्म बट नो अपॉर्चुनिटी. वो कर सकता है लेकिन उसे मौका नहीं मिला. आपने देखा उसके सब चीज़ फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, तो आप जानते हैं कि वो कर लेगा और आपने कुछ ट्राई भी किया और आपको लगता है वो कर पाएगा, लेकिन उसे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. से फॉर एग्जांपल गांव में पढ़ने वाला बच्चा जिसने कभी इंग्लिश का एक अक्षर नहीं सुना है, आप उससे कहते हैं कि आप ABCD सुनाओ या ये पढ़ के दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा. लेकिन वो हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो यू विल डेफिनेटली नो कि अगर इसे सिखाया जाए तो ये भी कर लेगा, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हिंदी वाले चीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो आप उसको लिख सकते हैं NO. +NO means he can do but there is no opportunity for the child. Then you will again score 1. और आप प्लस एंड माइनस स्कोर कब देंगे? when occasionally the child can do but not ordinarily. कभी कभी कर लिया, जैसे चलने वाली चीज़ बिना सहारे के वो कभी कभार चला है लेकिन ज़्यादातर उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है. in that case +- you will score at the same place like this. +- and that shows 0.5, half mark. और नॉट सक्सीडेड, आपने परफॉर्म भी करा लिया, पेरेंट ने भी कहा कि नहीं ये नहीं कर सकता है और आपने परफॉर्म कराया, नहीं हुआ, देन यू विल स्कोर 0. सो दिस इज हाउ यू डू द स्कोरिंग. So now when you have already administered the questions and administered the test with parents और performance भी देख लिया and you have marked +- और प्लस और NO whatever, और उसके हिसाब से आपने उसके आगे उसके मार्क्स लिख लिए हैं according to this one that I showed you in my previous video. ये वाला है ना. अब क्या करना है? What does that mean? आपको इनको ऐड करना है. When you get the final score, that is something to be interpreted. आपने ये वाली चीज़ें जब ले ली हैं तो आपके पास स्कोर आ जाता है और उसके हिसाब से आप इसमें कैटेगराइज करते हैं. तो कहाँ तक उस वो क्वेश्चनर पे पहुंचा है, से उसने कौन सा कर लिया है, इसमें से कितना कर लिया है, ये आपका इसकी की में से क्लियर होगा. कैन यू सी?
दीज आर द आइटम्स. फर्स्ट कैटेगरी में 17 आइटम्स थे. अगर उसने इसमें से मान लीजिए 7 तक क्वालिफाई कर लिया तो 7 तक पे है 4.9 मंथ्स. 1 साल का नहीं हुआ है लेकिन 4.9 मंथ्स का वो हो चुका है डेवलपमेंटली. इसी तरह से बाकी सारे नोट होते हैं. वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जो हमने क्वेश्चनएयर की बात की थी, इस क्वेश्चनएयर में मिक्स्ड आइटम्स हैं उन कैटेगरीज के जो हमने बात करी थी. सेल्फ हेल्प डायरेक्शन, सेल्फ हेल्प ईटिंग, सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग, ऑल दोज, ये सब मिक्स्ड होते हैं. क्योंकि जैसा हमने पहले बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो सभी डोमेन्स में हो रहा है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ मोटर स्किल्स पे या लोकोमोशन पे ही काम होगा और सेकेंड ईयर में सिर्फ कम्युनिकेशन ही हम देखेंगे. हर साल में हर दिन सारे डोमेन्स काम कर रहे हैं, तो उसमें सोशल पार्ट भी देखेंगे, उसका चलना फिरना, आई मीन लोकोमोशन भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे. राइट तो इसलिए ज़रूरी है कि वो मिक्स्ड आइटम है, आपको करने ही हैं. एंड डोंट वरी अबाउट इफ़ यू नो इट और नॉट कि ये कौन से सेक्शन में फॉल कर रहा होगा. और इसमें ऐसे नहीं बताया जाएगा कि कॉग्निशन क्या है, बट द आइटम विल डिपिक्ट इट. फॉर एग्जाम्पल यूज़ ऑफ कलर्स और जॉइनिंग ब्लॉक्स, ये सब चीज़ें हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉग्निशन को रिफ्लेक्ट करती हैं. और ये सब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कॉग्निशन काम कर रहा होता है. So let's proceed and see how to find out SQ, social quotient. There are two ways of doing it. One is the simpler form which I'll tell you. The other one is a little complicated, जिसमें बहुत सारी calculation and it confuses a lot. I think at this stage you won't be able to go into that. मैं आपको simpler method बताती हूँ जिससे कि आप देख पाएंगे कि क्या age है. Say for example इस तरह, तो आपने यहाँ से टोटल मार्क्स गिन लिए और उसके बाद जो हाफ मार्क्स हैं प्लस जो भी गैप्स के बाद आ रहे हैं आपने टोटल कर लिया है. तो इन दिस एग्जांपल वील टेक दिस एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल व्हाट वी डू, वी कॉरेस्पॉन्ड दिस विद द शीट, ये वाली शीट. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इन दिस वी हैव द फाइनल स्कोर ऑफ 68.5. तो वील राउंड ऑफ एट 68. So here if you can see 68 is here in the 7th year and 7 months. These are the months. So 7 years, 7 months is the social quotient. From the other method, if you will do that, it's a lengthier and complicated one. Again, you will get the same thing. So this is how we see the social age. Now what does that mean? Social age means the mental age. In many theories it has been proved that IQ is equivalent to SQ. थोड़ा फर्क कैसे होता है? If the child has got good opportunities in social exposure तो उसकी social age थोड़ी ज़्यादा दिख सकती है बजाय कि IQ के, but more or less एक जैसा रहता है. तो अगर हमें सोशल एज पता है टू एन एक्सटेंट वी कैन सी द मेंटल एज और हमने उससे SQ कैलकुलेट कर लिया है, तो दैट मीन्स वी नो राउंड ऑफ IQ ऑफ दैट चाइल्ड. तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंटली ये अभी इस एज पर है मेंटली और इसका जो IQ है वो लगभग इतना होगा. IQ लेबल करने के लिए इट्स गुड इफ़ यू एडमिनिस्टर एन इंटेलिजेंस टेस्ट, लेकिन इससे आपके बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं. सो इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम यू कैन डू VSMS और पेरेंटल इन्फॉर्मेशन जहाँ से ज़्यादा लेनी है, परफॉर्मेंस नहीं कराना है बच्चे से, जैसे कि हमने मिसिक में किया था, तो उस केस में आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी SQ फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे उसके IQ को डिपिक्ट कर पाते हैं. सो दिस इज हाउ वी डू VSMS. वन मोर थिंग दैट आई विल टेल यू, यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो मंथ्स हैं, अब आगे जाके तो टोटल मंथ्स आ रहे हैं, बट इन द फर्स्ट ईयर यू हैव ओनली मंथ्स एंड देन यू हैव पॉइंट समथिंग, 0.7, 1.4. व्हाट डज दैट मीन? दीज आर नॉट द डेज, ये उसका भी हिस्सा है. सो आई हैव मेड अ शीट फॉर यू टू मेक इट ईजियर, दिस वन. सो दिस आर डिविजन ऑफ मंथ्स इनटू डेज. जिसके भी आगे 0.1 है दैट मीन्स 3 days, 0.2 मीन्स 6 days. एक एक फिगर पॉइंट के बाद जो बढ़ती है दैट काउंट्स फॉर 3 days. सो इट्स लाइक दिस. और जहाँ 10 हुआ वहाँ 1 महीना हो गया, इस तरह से. ठीक है.
So I hope BSMS is now clear to you. If you have any queries, do come up with it, because if you ask, then only the things will be clearer to you.